ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर रिपोर्ट। This is Akashvani. We now bring you today's highlights of the 7th Khelo India Youth Games being held in Bihar. सातवीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार। Records are shattered and headlines are made by the young talents of our country here at Khelo India Youth Games Bihar. Hello and welcome to another edition of Daily Highlights program. I am Simanta Burma bringing you all the actions, excitement and vibes from across the venues. It's day 9 and more than 450 medals are won with excellent display of courage, determination and passion for sports. From traditional martial art Kalaripayattu, Thangta and Yogashana to modern day esports, the 7th edition of Khelo India Youth Games has it all. On the auspicious occasion of Buddha Purnima, the holy city of Bodh Gaya is engulfed with devotion and serenity, and we take you there where our colleague Nitish Arora brings us this report of Kalaripayattu. Day 2 of Kalaripayattu started with Longstaff Fight Girls. There were 20 teams in the preliminary round, out of which 12 progressed to the final round. 3 were from Karnataka, 2 each from Delhi and J&K. 1 team from Kerala, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh and Tamil Nadu made it to the finals. Team Kerala, comprising of Vidya Lakshmi and Vaigya Lakshmi, won the gold with a total score of 21. It was kind of difficult. It was the most difficult one. Never ever thought in the dream itself. There was effort of our Gurukul, Anandan Gurukul. The silver went to Kanishka and Jayani Shri from Tamil Nadu and their score was 20.6. Happy with the silver. For the past Khelo India, this is much better. So I'm happy with it. And the bronze medal was claimed by Dhatri and Larisha Sharma. This incidentally is the second medal for Larisha. She won a silver in Chuadugal a day before for Karnataka. Feel very proud and honored, able to get the medal for my state. Achievement for myself too, because 2 medals in a competition feels like a great achievement to me. In the second event of the day, 13 players out of a total of 31 progressed to the medal round. This was Chuadukal male. And the gold was claimed by Abhijit Ashokan of Kerala. Practice make perfect. Now matra dirmanise borlo. Just he's saying that not only his decision, it's also the decision of the God, isn't it? So he do his side very well. Then we God gifted him as a first prize. Silver was claimed by Ojaswai Gajaraj from Rajasthan, who switched over from karate to Kalaripayattu only a few months ago. उम्मीद तो नहीं थी पर मैंने बहुत मेहनत करी थी अभी कुछ महीनों से पहले मैं कराटे करता था. The third event of the day was high kick female. In this, a ball is hanged to a particular height for the players to kick it. The height of the ball is increased till the time the last 3 positions are achieved. And the height was raised from 5 feet 5 inches to 6 feet 5 inches to 6.9, then to 7, 7.4, 7.8, 7.9 and 8 feet. Alicia from Rajasthan and Priyanka Rajni from Karnataka won the 2 bronze medals. Silver was claimed by Alfia from Kerala. A little bit sad, but I'm really happy that I got second. And the gold was won by Kartika from Kerala. She jumped to a height of 8 feet. We should practice every day so we could reach up to more than 8. Very proud and happy. And is this your first Khelo India? No, it's the 3rd time. And what was your performance? Gold. All 3 times consecutive, 3 Yeah. golds. Yeah. You are a golden girl. Congratulations. Thank you. Tomorrow is the last day. The swords and shields will be out. Stay tuned in for more on Kalaripayattu tomorrow. From Bodh Gaya's peace and serenity to Rajgir's strength and stamina, athletes lifted weights to exhibit their power. Here is more from Rajiv Ranjan Tiwari from the weightlifting arena. मुकाबलों की शुरुआत बालिकाओं के 59 किलोग्राम वेट कैटेगरी से हुई, जिसमें कांस्य पदक असम की भावना गोगोई के नाम रहा। वहीं रजत आंध्र प्रदेश की थारंगिनी कारांगी के नाम रहा, तो वहीं स्वर्ण महाराष्ट्र की तनुजा पोल के निशाने पर रहा, जिन्होंने स्नैच में 71 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 100 किलोग्राम यानी कुल 171 किलोग्राम का भार उठाया। स्वर्ण पदक विजेता तनुजा पॉल। बहुत अच्छा लगा, गोल्ड मिला, पिछले बार मिला नहीं था, अभी तो अच्छा कर लिया था, मेडल
मेडल मिला, इसलिए बहुत हम खुशी हुई है। बालकों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य मध्य प्रदेश के हिमांशु कुशवाहा के नाम रहा। वहीं रजत पदक असम के हेमंता दोईमारी के नाम रहा। पर स्वर्ण पदक पर कब्जा अरुणाचल प्रदेश के तैयार रौनिक के नाम रहा। रौनिक ने स्नैच में 113 किलो, क्लीन एंड जर्क में 154 किलो यानी कुल 267 किलोग्राम का वजन उठाया। स्वर्ण पदक जीतने के बाद रौनिक, मैंने अभी तक टोटल मिला के 4 नेशनल्स और 2 खेलो इंडिया पार्टिसिपेट कर रखा है, तो आखिरकार ये 3rd खेलो इंडिया के बाद मेरा गोल्ड मेडल है। बालिकाओं के 64 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जहां कांस्य असम की शताब्दी भुइया के नाम रहा, तो वहीं रजत पदक ओडिशा की तिकी मोहिनी मलिक के नाम रहा। पर स्वर्ण आंध्र प्रदेश के खाते में आया। आंध्र प्रदेश की गुज्जला वर्षिता ने स्नैच में 79 किलो, क्लीन एंड जर्क में 95 किलो यानी कुल 174 किलोग्राम का वजन उठाया। स्वर्ण पदक विजेता गुज्जला वर्षिता। I am thankful to my family, my coach Ramkrishnan coach and Surya sir. बालकों के 81 किलोग्राम भार वर्ग में आज 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने और तीनों रिकॉर्ड साईराज परदेसी के नाम रहा। साईराज ने स्नैच में 140 किलो, क्लीन एंड जर्क में 172 किलो यानी कुल 312 किलोग्राम वजन उठाकर न केवल स्वर्ण बल्कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। वहीं रजत पदक आंध्र प्रदेश के एम तरुण और कांस्य पदक उत्तर प्रदेश के आयुष राणा के नाम रहा। स्वर्ण पदक विजेता साईराज परदेसी। अच्छा लग रहा है बहुत, नेशनल रिकॉर्ड किया और 3 नेशनल रिकॉर्ड किया, उसके बारे में खुशी तो बहुत है। और आज का अंतिम मुकाबला लड़कियों के 71 किलोग्राम वेट कैटेगरी का रहा, जिसमें हरियाणा की तमन्ना ने कुल 187 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं आंध्र प्रदेश की जूहिता गुना रजत पदक, तो केरला के रेणुमल PR कांस्य पदक अपने नाम की। The crackle of blades, the swift footwork, and the tactical gameplay. Fencing is a sport that demands skill, agility, and mental focus. Today, there were 2 gold medals at stake in fencing. To find out whose sword play excelled in the piste, we had KD Shukla and Tamsin Tiba with the details. तलवारबाजी मुकाबलों के दूसरे दिन आज 2 स्वर्ण पदकों के लिए खिलाड़ियों ने अपनी चपलता और कुशलता का परिचय दिया। लड़कियों के लिए व्यक्तिगत फॉइल में मणिपुर की मंगलेबी और चंडीगढ़ की प्रांशी अरोड़ा सेमीफाइनल में आमने सामने थी, जिसमें मंगलेबी ने 15-14 से जीत हासिल कर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में हरियाणा की प्राची और हरियाणा की ही तेजस्विनी के बीच मुकाबला था। प्राची ने तेजस्विनी को 15-8 से हराकर फाइनल में जगह बनाई और इस तरह चंडीगढ़ और हरियाणा को कांस्य पदक प्राप्त हुए। फाइनल मुकाबले में जैसी उम्मीदें थीं, 6 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली हरियाणा की प्राची ने अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए शानदार प्रदर्शन कर 15-11 से मंगलेबी को हराकर स्वर्ण जीता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये फाइनल थी, यही बाउट मैंने पिछले 2 टूर्नामेंट से हारी है, इसी लड़की से फाइनल बाउट, और आज वापस अपनी पोजीशन पे आते हुए बहुत खुशी हो रही है। बस मेरे कोचेज मेरे साथ रहे, मेरी फैमिली मेरे सबको सपोर्ट करते रहे, आगे भी ऐसी मेडल लाने हैं मेरे को। काफी लीड थी मेरे पास, 7-2 की लीड थी। उसके बाद थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हुई, कोचेज ने वापस से अपना फोकस वापस दिलाया मेरे को, थोड़ी से आंखें खोली, वापस से 11 होल के बाद और हो गया जो होना था। मैंने 6 इंटरनेशनल खेल लिए। नेशनल में मेरे पास 35 मेडल है। रजत से संतोष करने पर मंगलेबी ने कहा कि वो बहुत थक गई थी। First I lead the point, but after that I cannot lead because of the tired. That's why. वहीं लड़कों के लिए एपी के व्यक्तिगत मुकाबलों के पहले सेमीफाइनल में गुजरात के मनीष कुमार चौधरी और पंजाब के अश्विनी शौर्य आमने सामने थे। अश्विनी ने शुरुआती बढ़त जरूर बनाई, लेकिन मनीष ने शानदार फुर्ती दिखाते हुए मैच 15-14 से जीत लिया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में बिहार के रवि कुमार ने महाराष्ट्र के साई प्रसाद जंगवाड़ के साथ संघर्ष जरूर किया, लेकिन साई प्रसाद ने 15-10 से मुकाबला जीत लिया। पंजाब और बिहार को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र के साई प्रसाद और गुजरात के मनीष कुमार चौधरी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। आखिरकार साई प्रसाद ने चीते सी फुर्ती दिखाते हुए 15-10 से सोना जीत लिया। बहुत अच्छा लग रहा है जीतने के बाद। हमारे कोच सब सपोर्ट किया, सब तैयारी तो अच्छी की थी। महाराष्ट्र वालों ने कैंप लगाया था, सब अच्छे से फैसिलिटी तो सब दी थी, तो सही हुआ सब। मूवमेंट भी तेज था और कोच साहब ने जो बताया था वो सब ट्राई किए, अप्लाई भी हुआ। गुजरात के मनीष अपने प्रदर्शन से काफी नाखुश दिख रहे थे। कोशिश कर रहा था कि इस बार गोल्ड आ जाए, पर मूवमेंट जो थी मेरी जो दिखा नहीं सका, हार गया सबके। कुल मिलाकर पंजाब, बिहार और चंडीगढ़ को 1-1 कांस्य, गुजरात और मणिपुर को 1-1 रजत, महाराष्ट्र को 1 स्वर्ण, जबकि हरियाणा को 1 स्वर्ण और 1 कांस्य प्राप्त हुआ।
The captivating sport, gymnastics, are being held at Indira Gandhi Sports Complex, New Delhi. Shahid Azmi was there to capture the symphony of movement, music and energy of the acrobats. आज रिदमिक जिम्नास्टिक के क्वालिफाइंग और ऑलराउंड के फाइनल मुकाबले खेले गए। ऑलराउंड का गोल्ड मेडल चारों श्रेणियों हुप, बॉल, क्लब्स और रिबन में टॉप पर रहने वाली महाराष्ट्र की परिणा राहुल ने अपने नाम किया। यही नहीं, कल होने वाले रिदमिक जिम्नास्टिक के चारों फाइनल के लिए पहले स्थान पर रहते हुए क्वालिफाई किया। आइए जानते हैं परिणा क्या कहती हैं अपनी इस उपलब्धि पर। जी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा फर्स्ट गोल्ड मेडल है खेलो इंडिया में, तो मेरे सारे परफॉर्मेंसेस अच्छे गए हैं। मैं सारे एप्रेटिस में फर्स्ट आई हूँ, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। वो फीलिंग कि इतना जो मेहनत किया है वो फाइनली काम आ रहा है। मेरे कोचेस ने मेरे पे जितना टाइम, मेरे पेरेंट्स में जितना मेहनत किया है मेरे पे, वो फाइनली मैं उनको वापस दे पा रही हूँ गोल्ड मेडल हासिल करके। ऑलराउंड का सिल्वर मेडल भी महाराष्ट्र की शुभाश्री मोरे ने जीता। पहला खेलो इंडिया का मेडल जीतकर शुभाश्री गदगद हैं। बहुत अच्छा लगा, ये मेरा पहला खेलो इंडिया था और उसमें मैंने सिल्वर जीता है और आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड हैप्पी ऑल्सो। इस वर्ग में कुल 5 गोल्ड मेडल हैं, जिसमें से 4 पदक का कल फैसला होगा। दिल्ली की रायचल दीप इस साल हर प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर आ रही थी, लेकिन इस बार कांस्य पदक हाथ लगा। सुनते हैं ये मेडल उनका कितना हौसला बढ़ाएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि एज मैंने कहा था पहले भी, मैं जब से स्टार्ट हुआ ये साल में हर कंपटीशन में फोर्थ आई जा रही थी, तो मेरा मॉरल बहुत डाउन हो गया था। तो मुझे लगा था इस कंपटीशन में भी वही होगा, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। आई मीन मैं आ सकती थी और ऊपर, लेकिन क्योंकि मैंने थोड़ी गलतियां कर दी तो मैं थर्ड पे आ गई। रायचल ने हुप और बॉल इवेंट के अतिरिक्त क्लब इवेंट में भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। आपको बता दें, कल रिदमिक के अलावा आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के ऑलराउंड फाइनल भी होंगे। The mat is set ablaze as our young grapplers crashed in the wrestling competition which is being held at Gyan Bhavan Patna. Pins are being scored and the fight is intense. Let's dive into the highlights with Dharmendra Kumar. दमखम और दांव पेच का खेल कुश्ती में आज कुल 7 डिफरेंट कैटेगरी में इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें लड़कियों के फ्री स्टाइल 49 केजी और 61 केजी, वहीं लड़कों के फ्री स्टाइल में 51 केजी और 92 केजी इवेंट का आयोजन किया गया। ग्रीको रोमन में लड़कों का 55 केजी, 65 केजी और 80 केजी के इवेंट का आयोजन किया गया। क्वालिफाइंग और क्वार्टर फाइनल राउंड में खिलाड़ियों ने बड़े आसानी से जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया, वहीं सेमीफाइनल में कड़ा संघर्ष देखने को मिला। लड़कियों के 61 केजी के फ्री स्टाइल कैटेगरी में विशाखा, जो कि पंजाब की है, उन्होंने शिल्पी यादव उत्तर प्रदेश को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं 49 केजी के फ्री स्टाइल कैटेगरी में नैना, जो कि हरियाणा की है, उन्होंने कोमल वर्मा राजस्थान को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। ये सेमीफाइनल था, इसमें मतलब थोड़ा टफ था, क्योंकि मुझे वेट भी वो कंट्रोल में रखना था, फिर मॉर्निंग से तो फिर ऐसे डाइट भी कंट्रोल में थी, तो इस वजह से मतलब थोड़ा गिड़ी सा भी फील हो रहा था, मतलब इसलिए थोड़ा टफ था। पहले भी 10 दिन उनको हराया था जिनसे कल फाइनल है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हूँ, बट ये मतलब वेट आ जाएगा तो फिर गोल्ड तो दे ही दूंगी। लड़कों के 51 केजी फ्री स्टाइल में प्रणव सुधी हनुमतुन कर्नाटक को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। ग्रीको रोमन के 55 किलो के कैटेगरी में योगेश पहल, जो कि दिल्ली के हैं, आशीष कुमार पंजाब को, सचिन कुमार, जो कि हरियाणा के हैं, पंकज दिल्ली को पराजित किया। वहीं 65 केजी के ग्रीको रोमन कैटेगरी में उलटफेर देखने को मिला। मेजबान बिहार के जतिन सिंह, जो कि लगातार बढ़त बनाए हुए थे, हरियाणा के अनुज ने इन्हें चितकर बाजी पलट दी और फाइनल में प्रवेश किया। 51 केजी के फ्री स्टाइल में प्रणव सुधी, जो कि महाराष्ट्र के हैं, शुभम दिल्ली को पराजित किया। वहीं अर्जुन रुहिल हरियाणा ने नीरज सिंह दिल्ली को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। अच्छा रहा, 2 मैच थे, क्वार्टर फाइनल था इससे पहले, उसमें भी 10-0 से जीता हूँ और अब जीत कर दिया। ये ठीक थी कुश्ती, और कल फाइनल है, फाइनल में भी अपना पूरा 100% देंगे और आगे पूरी मेहनत करेंगे। आज के सेमीफाइनल मुकाबले को देखकर ऐसा लगता है कि कल होने वाले फाइनल मुकाबले में काफी संघर्ष देखने को मिलेगा। In football, the boys' semi-final matches were held at the Yamuna Bhagat Stadium in Begusarai. Khurshid Ahmed and Sanjay Biaz bring this report from the touchline. In the first semi-final of boys football, Odisha, who remained unbeaten in the group stage, overcame an early setback to Tres Mizoram by 5-1 this morning. Mizoram took a surprise lead in the 16th minute when striker Henry capitalized on a defensive error and slotted home a calm finish. For a brief moment, it seemed like the underdogs Mizoram might challenge their more illustrious opponent. But Odisha quickly regained composure and took control of the game. Their response was swift, with captain Ronik Maji equalizing in the 28th minute by converting a penalty into a goal. From that point on, it was a one-sided affair.
By halftime, Odisha had surged ahead by 3-1. In the second half too, Odisha continued its dominance and Mizoram barely managed to get out of their own half. Striker Venkateshwar Oram, who is having a magnificent tournament, scored 2 goals in the second half to make it 5-1 for Odisha. After entering in the final in boys football, the captain of Odisha, Ronik Manji, told Akashvani that they are here to become the champion. हम लोग का विनिंग करने का मतलब प्लान था, विनिंग करके जैसे फाइनल जाएंगे। और हम लोग फर्स्ट गोल खा गए थे, पर मालूम था कि हम कर पाएंगे, इसलिए हम कर पाए और बेटर खेलने की कोशिश करेंगे। और इतना दूर आके हारने का कोई रीजन नहीं है, चैंपियन यहाँ से लेके जाएंगे। बॉयज फुटबॉल का दूसरा सेमीफाइनल बेगूसराय के यमुना भगत स्टेडियम में दोपहर बाद खेला गया। मुकाबला था झारखंड विरुद्ध मेघालय। पहले सेमीफाइनल की तरह ये एक तरफा मुकाबला नहीं था। दोनों टीमों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश की, पर आज दिन झारखंड के नाम रहा और उसने ये मुकाबला 2-1 से जीत लिया। लाल जर्सी में झारखंड की टीम के मनीष हेम्ब्रम ने तीसरे ही मिनट में पीली जर्सी वाले मेघालय के पाले में गोल दाग दिया। मेघालय को बराबरी पर आने में मैच के 58वें मिनट तक संघर्ष करना पड़ा, जब बंगनसन ने झारखंड के विरुद्ध गोल कर टीम को बराबरी दिलाई। विजयी गोल झारखंड की ओर से चांद सिंह लगुरी ने 68वें मिनट में किया। उसके बाद मेघालय की टीम ने बॉल पर अधिकांश समय नियंत्रण रखा, हमलावर भी हुए, पर बात बनी नहीं। मैच समाप्ति की सीटी बजते ही झारखंड की टीम खुशी से झूमने लगी। मैच पर कप्तान रमेश खोया। लॉन्ग बॉल खेलने से वो लोग बेट हो जा रहा था डिफेंस, वही रणनीति बनाया था। हम लोग चैंपियनशिप बनना है। 14 तारीख फाइनल में झारखंड की टीम उड़ीसा के लड़कों से भिड़ेगी। कल 13 तारीख को लड़कियों का फाइनल झारखंड और तमिलनाडु के मध्य दोपहर बाद खेला जाएगा। The inclusion of Yogasana as a sport in the Khelo India Youth Games is a step towards promoting physical, mental and spiritual well-being among the youth. संकल्प मिश्रा फाइल्स दिस रिपोर्ट। आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें 16 में से 8 खिलाड़ियों ने कल होने वाले फाइनल्स में प्रवेश किया। इसी के साथ आज लड़कियों के ट्रेडिशनल फाइनल स्पर्धा का भी आयोजन किया गया, जहां तमिलनाडु ने गोल्ड, वेस्ट बंगाल ने सिल्वर और मध्य प्रदेश ने ब्रॉन्ज हासिल किया है। लड़कियों की ट्रेडिशनल स्पर्धा में अच्छे मार्जिन से अव्वल रहने वाली तमिलनाडु की एस तनीषा के जज्बात कुछ यूं थे। I cannot express my feeling in words because I feel very happy and very proud. I have a plan to do yoga till my whole life and it's a dream for me to achieve in Olympics. इसी स्पर्धा में सिल्वर लाने वाली वेस्ट बंगाल की अनुष्का चटर्जी के लिए सीखने को बहुत कुछ था। सबसे इंस्पायर हुए कि कैसे आसन करना है, क्योंकि देख के हम सीखते हैं। अभी मैंने हमारे ग्रुप में जो भी थे उनका परफॉर्मेंस देखा, अभी मैं वो घर जाके प्रैक्टिस करूंगी और भी खुद को डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश करूंगी एंड नेक्स्ट ईयर मैं कोशिश करूंगी गोल्ड लाने के लिए। कांस्य पदक से संतोष करने वाली मध्य प्रदेश की रिया भविष्य में कहाँ सुधार कर सकती है? मेरे आसन में मुझे थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करनी है। मुझे लगा कि थोड़ी आसनों में स्टेबिलिटी की भी बहुत ज़रूरत है। मेरे एक्सप्रेशंस थोड़े और अच्छे बनाने हैं मुझे और नए आसन मुझे ट्राई करने हैं। कल रिदमिक पेयर स्पर्धा में गोल्ड लाने वाले महाराष्ट्र के रोहन और अंश ने आज आर्टिस्टिक पेयर स्पर्धा में सिल्वर हासिल किया। इस खिताब से दोनों के चेहरे पे एक लंबी मुस्कान और भविष्य के लिए बड़े सपने हैं। इस खिताब पर रोहन, ऐसा लग रहा था मेरे को कि मैंने मेरे मम्मी पापा का और मेरे कोचेस का दिल जीता है और मतलब मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मैंने आज मेडल जीता है। और जितने भी लोग मेरे को प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप कर सकते हो, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। महाराष्ट्र के लिए सिल्वर लाने वाले रोहन के साथी अंश अपना भविष्य कहाँ तलाशते हैं? हमने बहुत प्रैक्टिस की थी इस मेडल, फिर भी मैं मेरी प्रैक्टिस जारी रखूंगा और अगली बार गोल्ड मेडल लाऊंगा। सिर्फ खेलो इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाऊंगा और उसमें भी मैं और रोहन पेयर में लाएंगे गोल्ड। कल रिदमिक पेयर स्पर्धा में 7वें स्थान पर रहने वाले राजस्थान ने आज आर्टिस्टिक पेयर में गोल्ड ला करके सबको चौंका दिया। क्या आज की परफॉर्मेंस पर कल का कोई दबाव था? बताते हैं राजस्थान के उज्जवल। कल की परफॉर्मेंस हमारे लिए भी बहुत ज्यादा टफ रही थी और रिजल्ट नहीं आने पे मतलब थोड़ा बहुत लगा कि ड्रॉबैक आ गया है, पर लेकिन अभी वो क्या है कि ड्रॉबैक के बाद में अपन पीछे वाले का नहीं सोचा, अभी फ्यूचर का सोचना है, मतलब आगे का सोचना। अभी हमारे हाथ में क्या है उसका सोचा हमने और हमारा ये मेन इवेंट था और ये सबसे टफेस्ट इवेंट था, तो हमने इसके ऊपर जोर लगाया और आज हमारे गोल्ड मेडल है। इस गोल्ड के लिए कितना तैयार थे उज्जवल के साथी ऋतिक? यही था कि आसन को पूरा होल्ड करना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। Let us now enter to the boxing ring where sparks and punches flew as young boys and girls with iron fists tried to pound their way to the finals. Here is Manoj Yadav with more punches. Today at Patel Indoor Sports Complex, boxing quarterfinals bouts in different weight categories were held. In cruiserweight category, boys 80 to 85 kg, the match was between Haryana and Karnataka, where Trideh from Haryana won quarterfinal bout
And after winning the bout, Tridev said, परफॉर्मेंस तो ये है अच्छा था, लेकिन आगे सेमीफाइनल और फाइनल में और भी अच्छा करना है और गोल्ड मेडल लेके जाना है इधर से. We also spoke to one of the players who have lost the bout after a tough fight, and he shared his experience with us. Hello, I'm Vivan Manjunath and I'm from Karnataka. So it was a good experience actually, and he was also from Haryana. So Haryana domination, we all know, it's a bit tough to face against Haryana players. But yeah, I gave my best. On the other hand, in the girls' light welter 60 to 65 kg was held in ring number 2, where player from Haryana, Harnoor Kaur, defeated Kerala player Shiva Priya. Harnoor Kaur spoke to us after the match. After recently competing with Kerala, I won by 4-1 and I'm extremely happy on this bout, and I hope for getting gold medal in this Khelo India Youth Games. In the welterweight 65 to 70 kg categories in the girls quarterfinal, Delhi beat UP 5-0 to move to the semi-final. After the bout, we spoke to Delhi player who said, मेरा नाम आकांक्षा फलसवाल है, मैं दिल्ली की टीम को रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं 65 टू 70 kg में खेलती हूँ और अभी मेरी फाइट यूपी के साथ थी, एंजल सक्सेना के साथ, और मैंने उसको सेकंड राउंड में आगे से उतारा. सर इधर से गोल्ड लेके जाएंगे, अपना बेस्ट देंगे. Thangta, which literally means sword and spear, is a traditional martial art of Manipur which combines combat techniques with dance-like movements showcasing agility, strength and precision. रमेश चंद्रा अपडेट्स आज फ्रॉम गया. हुनाबा अमा के बालकों के 56 किलोग्राम भार वर्ग में महाराष्ट्र के वैभव शरद माली, मणिपुर के युमनाम मैतेई, असम के प्रणय दास और नागालैंड के जस्टिन वेनर ने सेमीफाइनल मुकाबलों के लिए क्वालिफाई किया. वहीं 60 किलोग्राम भार वर्ग में असम के राजदीप दास, बिहार के लकी कुमार, हरियाणा के लक्ष्य और मणिपुर के थोइपा युमनाम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया. लकी कुमार, मैंने राजस्थान को हराया है -60 kg में और सेमीफाइनल के लिए मैं क्वालिफाई किया हूँ. मुझे उम्मीद है कि मैं गोल्ड मेडल जीत. लक्ष्य क्वार्टर फाइनल में सेमीफाइनल पहुंच गया हूँ और मैं थोड़ा बड़ा खुश हूँ. बालिका वर्ग के 52 किलोग्राम भार वर्ग में महाराष्ट्र की अपेक्षा बसवराज, बिहार की प्रिया प्रेरणा, मणिपुर की इरोम अनामिका देवी और छत्तीसगढ़ की किरण साहू ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया. प्रिया प्रेरणा, मैं खेलो इंडिया यूथ गेम में थंगता में क्वार्टर फाइनल अभी फाइनल की हूँ. तेलंगाना से मैं जीत चुकी हूँ और इसमें मेरे कोच का बहुत योगदान है. मैं बहुत खुश हूँ और मैं सेमीफाइनल के लिए अभी रेडी हूँ. इरोम अनामिका, मैं बहुत खुश हूँ, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है. हमारे कोच ने बहुत मेहनत कर रहा है, मुझे विश्वास है गोल लेने के लिए. The semi-final matches of the fast-paced racket sport, badminton, was played today at Sandys Compound Complex in Bhagalpur. Let's relive the thrilling moments from today's matches with Sobhagya Rath. आज बैडमिंटन में सेमीफाइनल और ब्रोंज मेडल के लिए मुकाबले खेले गए. गर्ल्स और बॉयज डबल्स में महाराष्ट्र ने कांस्य पदक जीता. तेलंगाना को सीधे सेटों से हराने के बाद महाराष्ट्र की खिलाड़ी I'm Tarini Suri and I play badminton from Maharashtra. Coming into this match, we just wanted to give it our best and at least play well. We were pretty confident we'll win. Shravani Valekar. So the main aim was to play well and then I think we did that. ओम और सर्विस की जोड़ी के सामने कर्नाटक की टीम टिक ना सकी. मेरा नाम ओम अतुल गवंडी है. तो हम लोग थोड़ा स्टार्टिंग में मोटिवेशन नहीं आ रहा था हम लोग को, तो थोड़ा उसके बाद हमने अपने आप को पुश किया. वो लास्ट मैच है खेलो इंडिया का, इधर से कुछ मेडल लेके जाना है, इसलिए हमने आपको पुश किया. तो रिजल्ट हम लोग का अच्छा हुआ. थोड़ा अभी हम दोनों सिंगल्स प्लेयर है, पर हम लोग को इधर डबल्स में एंट्री मिला तो हम दोनों डबल्स खेलने आए. पर डबल्स में भी बहुत मेहनत लगता है, शटल एकदम फास्ट चलता है. सर्वेश यादव, तो हमें मालूम था कि हम इनसे भी अच्छा खेलते, सबसे अच्छा खेलते. स्टार्टिंग में बस खुद को पुश किया कि हाँ अच्छा खेलेंगे बस बार लीड मिला तो जीत जाएंगे. फिर अभी वैसे ही हुआ, स्टार्टिंग में लीड मिल गया, फिर एक बार कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया तो हम जीते. तेलंगाना के बोबा अखिल रेड्डी ने सीधे सेटों से मणिपुर के हेमम मलेनगंबा सिंह को मात दिए. बोबा अखिल रेड्डी सुबह पहला सेट अच्छे से खेल रहा था, फिर दूसरा सेट थोड़ा सर्विस की वजह से पूरा गेम ही छूट गया था. 4 सर्विस फॉल दिया था, फिर मैं डिसअपॉइंट हो गया था. फिर अभी थोड़ा रिकवरी होके आया था, सर्विस चेंज किया था, तब अभी अच्छा खेला था. तमिलनाडु के अधीरा राजकुमार को बालिका सिंगल्स में वॉकओवर मिला और बिना खेले ही उन्होंने ब्रोंज मेडल पर अपना कब्जा जमाया. The excitement is building up in the tennis court as the competition enters its final stage. Giving you this report from IIS Bhavan is Venkatram. Day 3 of the tennis competition witnessed semi-final matches of the boys and girls singles and doubles events. Notwithstanding the heat, competitors sweated it out and were locked in some intense contests. In the boys singles semi-final match, Arjun Rathi of Haryana continued his winning streak to down the top-seeded Arnav Vijay Paparkar of Maharashtra 6-4, 6-2 and booked a berth in the finals. Arjun spoke to Akashvani. Yeah, that's a great match today. I played the top seed, Arnav Vijay Paparkar. I won in the straight set 6-4, 6-2.
Obviously, the heat was not a big factor. I think my mindset helped me to win this match. In another semi-final match of boys singles category, Shankar Hisnam of Manipur upstaged Samarth Ujjwal Sahita from Gujarat. Shankar fought back from one set down to win 3-6, 7-6, 3-0. In the girls section, in the first semi-final match, the top seeded from Telangana, Rishita Reddy, had to pull up her socks to eliminate Harshini Nagaraj of Karnataka, 7-5, 6-1. Rishita Reddy spoke to Akashvani. Yeah, I was up 4-1 and then 5-3, but she managed to come back. But I'm happy I managed to pull it out again. I was just like, I'll put the ball inside and then see how it goes. So it went well. In the other semi-final match of the girls category, fortunes swayed both the ways before Aishwarya Dayanand Jadhav from Maharashtra prevailed over Lakshmi Siri Dandu from Telangana 3-6, 6-4, 6-2 and will lock horns with the top-seeded Rishita Reddy of Telangana in the gold medal contest of the girls singles category. Aishwarya. It was a really tough match overall and until the last moment, and it helped me to pull the second set. The third set I played with the same rhythm, and so it helped me to win the match. The double semi-final matches of boys and girls started late in the evening. The finalists from these matches will try to corner the glory. Tomorrow, bronze medal matches of boys and girls singles and doubles category will be held at IAS Bhavan, Patna. Now we move on to basketball, where our colleague Anshu Manja witnessed all the action from the court side at Patliputra Sports Complex. सुबह की शुरुआत दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच एक जबरदस्त मुकाबले के साथ हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश ने दिल्ली को मात्र 2 अंकों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश के जतिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 अंक जुटाए और अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार के लिए आज का दिन बेहद निराशाजनक रहा। बालक वर्ग में बिहार की टीम को तमिलनाडु के हाथों 90-49 से शिकस्त मिली। हालांकि बिहार के शूटिंग गार्ड विधु शेखर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 22 अंक अर्जित किए, जिसमें 4 3 पॉइंटर्स शामिल हैं। आज बास्केटबॉल के खेल में शतक देखने को मिला। बिहार के खिलाफ खेलते हुए तमिलनाडु की टीम ने 118 अंक अर्जित किए, जो इन खेलों में बास्केटबॉल के किसी मुकाबले में अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर है। दबाव में आई बिहार की टीम मात्र 15 अंक ही जुटा सकी और पूरे मैच में असहज नजर आई। एक अन्य मुकाबले में हरियाणा की बालिका टीम ने कर्नाटक को 68-56 से हराया। हरियाणा की कप्तान काफी ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए 23 अंक जुटाए। वहीं भूमि की असिस्ट और तनु के 3 पॉइंटर्स ने दर्शकों को रोमांचित किया। हरियाणा के कोच हर्षप्रीत। हर एक टीम में 2-2 प्लेयर हैं जो बॉल कन्वर्ट कर रहे हैं, जो स्कोर मार्जिन लेके चल रहे हैं, बट मेरे पांचों के 5 प्लेयर 15-15 प्लस पॉइंटों पे खेल रहे हैं। काफी आज बहुत अच्छा खेली। जब भी उसके ऊपर प्रेशर बनता था, भूमि उस प्रेशर को रिलीज करती थी। तनु बैक टू बैक कंटिन्यू 3rd क्वार्टर और 4th क्वार्टर में मेरे को लीड बना के दी उसने। कर्नाटक की ओर से निधि श्रीनिवास और निधि उमेश ने अच्छा संघर्ष किया, लेकिन टीम जीत दर्ज नहीं कर सकी। मैच के बाद कर्नाटक के कोच बैड डिफेंस एंड आल्सो आवर मेन शूटर्स डिडंट प्लेड वेल एंड शूटिंग गार्ड नो प्रॉपर शूटिंग। या वी हैव एडवांटेज ऑफ हाइट, स्टिल दे प्लेड बेटर। वी आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट मध्य प्रदेश, दे डोंट हैव हाइट, वी विल विन दैट मैच। बास्केटबॉल में कल पूल मैच और परसों सेमीफाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे। Often considered the backbone of sports, the athletics event commenced today at the Patliputra Sports Complex in Patna. A total of 9 medals were up for grabs across various disciplines on day 1 of the competition. Ashish Charangu gives us all the details. खेलों की रानी कही जाने वाली एथलेटिक्स की स्पर्धाओं के पहले दिन 9 स्वर्ण पदकों का फैसला होना था। प्रतियोगिता का पहला स्वर्ण पदक रहा तमिलनाडु के आरसी जिंथन अर्जुनन के नाम, जिन्होंने दूसरे प्रयास में 7.6 मीटर की दूरी हासिल कर बालक वर्ग में लंबी कूद का स्वर्ण अपने नाम किया। 765 today I have done. It's not my best, but I have given my best. Because of my calf muscle pain, I can't do much better. Next meet I can do better. बालक वर्ग के डिस्कस थ्रो में हंसराज दयाल ने 63.18 मीटर दूर चक्का फेंक राजस्थान को स्वर्ण का हकदार बनाया। शौर्य अंबुरे ने बालिका वर्ग में 100 मीटर हर्डल्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मेरा पीबी 13.80 का है, बट तब ज्यादा हवा थी, विंड एडेड था। अभी माइनस में थी विंड, तो विंड मेरे अगेंस्ट थी, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगा, इसीलिए टाइमिंग 14.1 आया। उधर बालक वर्ग में 110 मीटर हर्डल्स में महाराष्ट्र के सैफ फारूक चैफी राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर करने से तो चूके, लेकिन स्वर्ण पर अपनी दावेदारी जरूर बना ली। नेशनल रिकॉर्ड था 13.47 का, 0.01 सेकंड से रह गया मेरा, 13.48 भागा। Finally, let's look at the medal tally.
At the end of day 9, Maharashtra lead the table with a total of 87 medals, including 36 gold. Karnataka and Rajasthan have the same number of 14 gold medals, but Karnataka sit on the second position owing to the superior silver medal, and Rajasthan sit on the third position. With that, we come to the end of today's Daily Highlights program. I am Simanta Burma with Moma and producers Prabin Chand and Mobin Ahmed Khan for Akash Bani. सातवीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार। अभी आप बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर रिपोर्ट सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की केंद्रीय कवरेज टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया। You just heard highlights of the 7th Khelo India Youth Games being held in Bihar. This program was presented by the Central Coverage Team of Akashvani.